14th webinar on the National Good Governance webinar series on the Prime Minister's award-winning initiatives. Today's theme is Innovation District. The Honorable Prime Minister had directed that all efforts should be made to replicate and disseminate good governance practices, particularly those which are the Prime Minister award-winning initiatives. And on a monthly basis, about an hour to hour and a half sessions are conducted with award winners as the lead speakers to disseminate best practices. So far, we have conducted 13 national good governance webinars on the last Friday of every month from 2022. So the 13 webinars covered a gamut of themes, improving public service delivery, health, aspirational district program, grievance redressal, environment, Jan Bhagidari, innovations at district, state and center levels, Jal and water management, as also Namami Gange. And in each of these webinars, about 1,000 officials from ministries, departments, state governments, and district collectors have been participating. In fact, the record of discussions that was prepared and released by the Honorable Vice President reflects that the National Good Governance Series has been one of the very successful initiatives launched by the DIRPG. The Honorable Vice President had also advised that the Prime Minister's award winners shall be presented through the Sansad TV in a weekly series that is titled Abhinav Pahel. Today, two initiatives are being presented under the category Innovation District. Rampur District of Uttar Pradesh will be presenting the initiative of Sanvardhana, Vocal for Local, and Changlang District of Arunachal Pradesh will be presenting the initiative New Age Learning Centers. Let me introduce our speakers to you. Sri Ravindra Kumar Mandir is the District Magistrate of Rampur. He is from the 2013 batch of Uttar Pradesh cadre. He has served as CDO Agra and Municipal Commissioner Mathura. And he is a recipient of the PM Awards for Excellence in Public Administration for the year 2022 for Sanvardhana, and has also been awarded with other awards like Jal Prahari from the Ministry of Jal Shakti. A brief film on the project will be played to you after the introductory remarks. The second speaker for today is the District Collector of Changlang District, Sri Sunny Singh. He is from the 2018 batch of UT cadre. He is a BTech in Mechanical Engineering from the Delhi College of Engineering. And his initiative is the New Age Learning Center, which was awarded the PM Award for Excellence in Public Administration for the year 2022. Let me request the D&D division to kindly play the films of the awarded initiatives, and thereafter I will invite our speakers to make their presentations. Please play the film. उत्तर प्रदेश की रामपुर जिले ने कुपोषण के खिलाफ एक सामूहिक लड़ाई छेड़ी। पीएम पोषण अभियान के विजन और वोकल फॉर लोकल की सोच को पिरोए इस लड़ाई में उनका साथी बना संवर्धन। पीएम पोषण अभियान से प्रेरणा लेकर जनपद रामपुर में प्रोजेक्ट संवर्धन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में कुपोषण की व्यापकता को खत्म करके उन्हें सुपोषित बनाना था। हम लोग अपने फार्मर सदस्यों से क्लस्टर बनाकर और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर से हाई वैल्यू ग्रेन्स उगवाते हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, जिसमें ब्लैक व्हीट है, मशरूम है, आंवला है। इस तरह की चीज़ें उगाकर अपने मेंबर से यहाँ हम लेते हैं। लेने के बाद उनको सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग और रोस्टिंग करके एक परफेक्ट मिक्सचर हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। इन सभी किसानों के माध्यम से डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उत्पादन करके और उनका हम लोग वोकल फॉर लोकल की थीम पर लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोक्योरमेंट, लोकल प्रोसेसिंग एंड लोकल कंजम्पशन की थीम पर काम कर रहे हैं।
इन सब में वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो सब उसमें निहित होते हैं और बच्चों को ये जब मिलते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो वोकल फॉर लोकल की थीम पर हम लोग इस काम को करते हैं। किसी भी अभियान की सफलता के लिए जरूरी है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो ताकि हम उसका इम्पैक्ट जान सकें। तो हमने मॉनिटरिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल और फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एक पोषण वार रूम की स्थापना की, जो कि कॉल सेंटर के रूप में काम करता है। हमारे इस पोषण वार रूम में नियुक्त पोषण चैंपियंस लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हैं तथा ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चों में पोषण की श्रेणी में बदलाव क्या हुआ तथा जो हम पोषण किट दे रहे हैं उससे उनको क्या लाभ हो रहा है। पोषण पंचायतों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को पोषण किट की महत्ता के बारे में बताया। हमने विकास भवन में पोषण वॉर रूम की भी स्थापना की, जहां पे हमारे पोषण चैंपियंस सीधे बेनिफिशियरी से बात करते थे। उनकी ट्रेनिंग का जो पार्ट है, उनके फीडबैक मैकेनिज्म का भी हम लोगों ने पोषण वॉर रूम के माध्यम से ध्यान रखा। घर घर जाकर हमने होम विजिट के द्वारा उन्हें उस पोषण पोटली के बारे में, लाभों के बारे में बताया, उसके सेवन के बारे में बताया। जो ये आंगनवाड़ी वाली दीदी किट दे के गई थी, उसमें शहद था, बिस्कुट थे और दलिया था। वो हमने अपने बच्चे को टाइम से ही खिलाया है, जैसे इन्होंने बताया वैसे ही खिलाया है। मेरा हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए मुझे आंगनवाड़ी की दीदी की तरफ से पोषण किट मिली थी और उसे खाने से मुझे फायदा हुआ। मैं अपने बच्चे को सही दूध पिलाती हूँ, इससे मैं स्वस्थ रहती हूँ। कमजोरी भी ठीक हो गई और दूध भी सही उतरता है बच्चे के लिए। हम भी स्वस्थ हैं और बच्चे भी स्वस्थ हैं। हमारे किसान भाइयों ने एफपीओ के माध्यम से पूरी मदद की और उनके द्वारा निर्मित पोषण किट से हम इस अभियान में सफलता प्राप्त कर पाए। अब ये प्रोजेक्ट केवल जन भागीदारी तक ही सीमित नहीं रहा है, कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में जन भागीदारी से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। रामपुर में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। So I'll invite now Sri Ravindra Kumar Mandir to kindly make his presentation. We'll play the second one after the first presentation. Yes, please. Yes, Ravindra Kumar ji, please make the presentation. Thank you so much, sir, for giving us opportunity to present our case. प्रोजेक्ट संवर्धन की शुरुआत सर हम लोगों ने पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 में पीएम पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका मूलभूत उद्देश्य वर्ष 2022 तक कुपोषण के स्तर को 25% से कम पूरे देश में लाना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर इस प्रोजेक्ट को हमने डिजाइन किया और एक और ऑब्जेक्टिव सर इसके माध्यम से हम लोगों ने अचीव किया फार्मर्स डबल इनकम का, जो भी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 के अनुसार हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5.9% बच्चे इसमें सीवियरली वेस्टेड कैटेगरी में चिन्हित हुए थे, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि यही वो बच्चे थे जिसे आम भाषा में सूखे बच्चे के रूप में कहा जाता है और इन बच्चों के न्यूट्रिशन के ट्रैप में फंस के और डेथ होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हमारे पास वल्नरेबल एरिया था जिसपे हमें काम करना था। तो इनको ध्यान में रखते हुए, इनके फैमिली प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए हमने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स, हमारे आयुष के एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, उन सभी लोगों की एक हमने कमेटी बनाई और उनको इन सारे फैमिलीज का प्रोफाइल देके केस स्टडी के बेसिस पे हमें रिपोर्ट देने के लिए कहा। इस वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सर एक इसमें जो मेन कारण निकले उसमें इन सारी फैमिलीज का पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होना, इनका पुअर डाइट पैटर्न होना, जिसके कारण ये बच्चे कुपोषण के ट्रैप में लगातार फंसते चले जा रहे थे। आईसीडीएस डिपार्टमेंट द्वारा जो हम सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज के अंतर्गत जो हम फूड जो सामग्री इन फैमिलीज को देते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये देखी गई कि उसमें हमने एडिबल ऑयल और इसके अतिरिक्त जो हम उनको गेहूं और चावल का फैसिलिटी देते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ उनकी फैमिलीज भी कंज्यूम करती थी, जिसके कारण पूरा न्यूट्रिशन उन बच्चों को नहीं मिल पाता था और बच्चों के टेस्ट बड्स के हिसाब से भी उसमें चैलेंजेस थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे एक लोकल एफपीओ का गठन, जो हमारे यहाँ पे पहले से काम कर रहा था, रामपुर कृषक उत्पादन संगठन, उनके साथ में मिलकर हमने जॉइंट प्लान किया और एक लोकल स्तर पे हमने प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की और उनके माध्यम से हमारी संवर्धन पोषण किट हम लोगों ने डिजाइन की, जिसमें 7 प्रकार के प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने इसमें लिया और ये देखा कि जो हमारे रेगुलर सर्विसेज है आईसीडीएस डिपार्टमेंट की, उनके साथ साथ इस पोषण किट को भी अगर बच्चों को खिलाया जाए तो उसके बेहतर परिणाम हो सकते हैं।
2021 में फरवरी में 101 बच्चों पे हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था और 3 महीने तक लगातार जब उन बच्चों को पोषण किट को खिलाया गया तो उसके बाद में वो सभी बच्चे कुपोषण की श्रेणी से जो सैम कैटेगरी में थे उससे वो बाहर आ गए। उसके बाद में सर हमारी पूरी टीम ने डिसीजन लिया कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग विस्तार देंगे और हमारे एफपीओ को हम लोगों ने नाबार्ड के माध्यम से लोनिंग करा के उनकी प्रोसेसिंग यूनिट को और व्यापक विस्तार दिया और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया, उसमें मशीनीकरण को बढ़ाया। सितंबर 2021 से फिर हम लोगों ने इसको जो पोषण माह सितंबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे मनाया गया था, उसके बाद में हमें इसे लॉन्च कर दिया और सभी 2017 बच्चे ऐसे जो हमारे सैम कैटेगरी में चिन्हित हुए थे उन सभी 2017 बच्चों पर हम लोगों ने इसको लागू किया। 3 माह तक लगातार इस पोषण किट को उन बच्चों को भी खिलाया गया और उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो, उनके सुपरवाइजर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो, हमने विकास भवन पे जहाँ पे हमारा ICDS डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वहां पर हम लोगों ने पोषण वॉर रूम की स्थापना की, जहाँ पे पोषण चैंपियंस को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी कि लगातार वो इन फैमिलीज से और जो हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं उनके साथ में सीधे संपर्क स्थापित करें और उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है और जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनसे लगातार फीडबैक भी लें कि उनको जो हमारी सर्विसेज दी जा रही है उसके बारे में उनका ओपिनियन क्या है। तो इस पूरे सर एक्टिविटीज का असर ये हुआ कि 94% बच्चे हमारे 3 माह में सैम कैटेगरी से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ जो हम लोग एक चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हम लोग नहीं कर पाते हैं और किसान पाठशालाओं में लगातार किसानों से हम लोग ये संपर्क करते हैं, ये उन्हें निवेदन करते हैं कि वो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को अपने यहाँ पे बढ़ावा दें, लेकिन मार्केट लिंकेज प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण और जो प्रॉपर उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल पाती थी उसके कारण उनके सामने चैलेंजेस थे और उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एफपीओ के माध्यम से हमने उनको अपने साथ जोड़ा है और लगभग 288 हेक्टेयर्स में डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का भी हम लोगों ने कल्टीवेशन किया है और उनके प्रोडक्ट्स को लोकल लेवल पे वोकल फॉर लोकल की थीम पे लोकल एफपीओ द्वारा खरीदा गया है और उनके प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया है जिससे हमारा 288 हेक्टेयर का एरिया भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का बढ़ा। इस एक्टिविटीज का परिणाम ये हुआ कि हमारा 2020 की तुलना में 2022 में MMR 28.9% कम हुआ, IMR 8% कम हुआ, एंटीनेटल चेकअप जो कि मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत आवश्यक होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो उसमें 29% की वृद्धि हुई और 2020 की तुलना में 2022 में ओवरऑल कुपोषण में 59.3% की कमी हुई। नेक्स्ट, ये सर इसका क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट है जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट फेज में 94% बच्चे बाहर आए जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड राउंड में हम लोगों ने कुपोषण के पूरे चक्र को तोड़ने के लिए सैम कैटेगरी के बच्चों के साथ साथ जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स थी, हमारी ऐसी एडोलसेंट गर्ल्स थी जो एनीमिक थी और प्रेग्नेंट वुमेन जिनका जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम लोग चिन्हित करते हैं, HRP जिसे हम कहते हैं, उनको भी हम लोगों ने इसमें अभियान में शामिल किया है और 2017 लोगों से ऊपर जाके आज 5000 से ऊपर बेनिफिशियरी हमारे हैं और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट की 90% से ऊपर हमारी इस कैटेगरी में उनके न्यूट्रिशन स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स की इनकम की अगर हम बात करें तो 16% से ऊपर फार्मर्स की इनकम इसमें हमारी डबल हुई है और 45% से ऊपर फार्मर्स की इनकम 50 से 75% तक बढ़ी है। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने शुरुआत की थी इस अभियान की तो एक एफपीओ के 350 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े थे और बाकी फार्मर्स को अपने साथ जोड़ना एक चैलेंज था, बट फिर भी धीरे धीरे जब बाकी फार्मर्स से बात किया गई और इस प्रोजेक्ट की सफलता के साथ में जब उनके उत्पादित फसलों का उचित मूल्य उन्हें मिला तो आज 22 एफपीओ के 2080 से ऊपर किसान हमारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने हैं और लगातार हमें अलग अलग लीड्स की सप्लाई कर रहे हैं। जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट है जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया उसको भी रामपुर में ही हम लोगों ने स्थापित कराया है और अभी लगातार उसका अपग्रेडेशन का काम भी हम लोग लगातार करा रहे हैं। जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो NABL और FSCI से सर्टिफाइड हैं ताकि उसकी गुणवत्ता में कहीं किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना हो। नेक्स्ट, ये एक यूनिक मॉडल बना है सर
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है बाय प्रमोटिंग वोकल फॉर लोकल को लगातार बढ़ावा देना। 2022-20 के बाद में हमने देखा था कोविड के दौरान कि वोकल फॉर लोकल पे लगातार उनका बहुत ज्यादा जोर था। इसीलिए हम लोगों ने भी ये प्रयास किया कि हमें बाहर से कहीं सप्लाई पे निर्भर ना रहना पड़े और उसके लिए कुछ जो स्थानीय स्तर पर इनोवेटिव स्टेप्स लेने थे उसको लेने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और 3 तरीके के इनोवेशन इस प्रोजेक्ट का पार्ट बने हैं, जिसमें इकोनॉमिक इनोवेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन और न्यूट्रिशन इनोवेशन मूल रूप से है। इकोनॉमिक इनोवेशन में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले फार्मर्स को ये दिक्कत आती थी कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप में हम लोग मार्केट लिंकेज नहीं करा पाते थे और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ साथ उनको उचित मूल्य का हमेशा एक इशू रहता था। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने इंश्योर किया है कि लगातार उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलता रहे, तो इसलिए डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का एरिया भी हमारे यहाँ पे बढ़ा है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी का एक चैलेंज था, जिसको हम लोगों ने जो हमारी ग्राम पंचायतों में 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कुपोषण से लड़ने के लिए अपनी धनराशि को खर्च करें। पर प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि पंचायतों में इसमें थोड़ी रिलेक्टेंसी होती है, वो नहीं करते हैं। तो हमारे जितने यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान थे और हमारे सेक्रेटरी से सब लोगों का हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया था और उनको मोटिवेट किया कि अब हमारे सामने आज के भारत के सामने चैलेंज ये है कि हम इंफ्रा में तो बहुत हमने अच्छा काम किया है, लेकिन जो हमारा मैन पावर है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें लोकल स्तर पर ग्राम पंचायत जो कि ग्रासरूट लेवल का सबसे हमारा मजबूत तंत्र है, उनकी जिम्मेदारी है। तो उनको लोकल लीडर्स के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया। तो हमारे सभी प्रधानों ने इसमें सहयोग किया और एक MOU हमने FPO, ग्राम पंचायत और ICDS डिपार्टमेंट के मध्य ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट 3 साल के लिए कराया, ताकि हमारा प्रोजेक्ट सस्टेनेबल रहे और उसमें बजट कंस्ट्रेंट के कारण कहीं किसी प्रकार का इशू ना आए। इसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जिसमें ICDS, पंचायती राज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फूड, इन सारे डिपार्टमेंट्स का इसमें जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई और लगातार मीटिंग्स के माध्यम से और मॉनिटरिंग के माध्यम से इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। न्यूट्रिशन इनोवेशन में सर जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो डाइटरी हैबिट्स इन बच्चों की थी, इनकी फैमिलीज में जो डाइट पैटर्न था, उसको हमारे वर्किंग ग्रुप ने बहुत क्लोजली वॉच किया था, उसको एग्जामिन किया था और जो जो उनके डाइट पैटर्न में कमियां थी उसके हिसाब से ही बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने इस संवर्धन पोषण किट को डिजाइन किया है, जिसमें 7 तरीके के प्रोजेक्ट हमारे मूलभूत रूप से हैं, जिसमें खट्टा मीठा सुपर लड्डू, मशरूम कॉर्न सूप, ऑर्गेनिक हनी, मल्टीग्रेन कुकीज, आंवला त्रिफला जूस, सुपर फूड सप्लीमेंट और ब्लैकवीट मोरिंगा फ्लैक्सीड का दलिया, जिसमें मूल रूप से कैरोटीन, थायमिन, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, जिंक, इस तरीके के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी को हम लोगों ने उनके फूड में शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इन बच्चों को, इन जो हमारी एनीमिक एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो हमारी धात्री माताएं हैं, उन सबको मिले और वो इस कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकल सके। एक मॉडल MOU सर एक हम लोगों ने इसमें शो भी किया है। नेक्स्ट इसका सर गवर्नेंस मॉडल जो रहा है हमारा FPO के बेसिस पे हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा कहना होता है कि हम लोग लोकल लीडर्स को क्रिएट करें और हमारे जो आम जन है उनकी क्षमताओं में विश्वास करते हुए प्रशासन उनको सहयोग करे और उसके माध्यम से प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाए। तो उसी नीति में विश्वास रखते हुए हम लोगों ने इसमें FPO को लीड रोल दिया और उनको पैकेज यूनिट, उनका लोकल पैकेजिंग, लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल प्रोक्योरमेंट की थीम हमने इस पे रखी है। और जैसा MOU के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम लोगों ने इसमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रोक्योरमेंट का प्लान किया था और ग्राम पंचायत जब उसको प्रोक्योरमेंट कर लेती है तो अपनी आंगनबाड़ी कार्यकृति के माध्यम से उसकी डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करती है। और एक और हमने आंगनबाड़ी को जिम्मेदारी दी कि कहीं पे इसमें इशू क्रिएट ना हो, इसलिए वो अपने सामने ही कोशिश करे कि इन बच्चों को वो ये सारे पोषण किट का को खिलाए, सो दैट कि कहीं पे फैमिली में किसी सूचना के अभाव के कारण इसमें कोई इशू ना हो।
तो उसको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। और साथ साथ ग्राम प्रधानों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अन्य डिपार्टमेंट के माध्यम से एक जन जागृति का, एक जन भागीदारी का मैसिव मूवमेंट हम लोगों ने इसमें चलाया था, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि इन फैमिलीज को 3 महीने के बाद भी लगातार ये कहीं पे इस प्रक्रिया में छूट ना जाए और फिर से वो बच्चे कहीं कुपोषण के शिकार ना हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में प्रयास किया है। नेक्स्ट। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो टेक्निकल टूल थे वो पोषण ट्रैकर ऐप था, जिसको WCT मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है 2 साल पहले। और इसमें बहुत सारा डेटा हमें सैम कैटेगरी, मैम कैटेगरी में जितने हमारे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उसका पूरा डेटा मिल जाता है। लेकिन जो हमारे न्यूबॉर्न जितने बर्थ्स होते थे उसका डेटा उसमें हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी सेंटर में होता है उसके बाद ही पोषण ट्रैकर पे हम लोग उसका डेटा क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले जो न्यूबॉर्न बच्चे थे उनका हमारे पास कोई ऑनलाइन टूल नहीं था, इसलिए हमने लोकल लेवल पे NIC की मदद से वात्सल्य ऐप और वात्सल्य पोर्टल का डेवलपमेंट किया, सो दैट कि 42 डेज तक जरूरी होता है आशा और आंगनवाड़ी के लिए जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनका HBNC विजिट, तो उनके घर पे वो जाएं और 42 डेज तक उनका केयर करें कि बच्चे को किस प्रकार से वो पोषण करा रहे हैं, किस प्रकार से उनको लैक्टेट कराया जा रहा है, और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो फिर अपने जो हेल्थ के सीनियर हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको अवगत कराते हैं। तो ये डेटाबेस इसलिए क्रिएट किया गया है, साथ साथ उनके वैक्सीनेशन का भी डेटा इसमें है। तो वात्सल्य ऐप के माध्यम से हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हमारे ICDS डिपार्टमेंट और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आया है और एक दूसरे से सूचनाओं को भी आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे भी हमें इस अभियान को सफलता में काफी मदद मिली। एक हमने डेडिकेटेड पोषण वॉर रूम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापित किया था, जिसमें पोषण चैंपियंस की जिम्मेदारी थी कि वो लगातार फीडबैक बेनिफिशियरी से लेते रहे और लगातार फीडबैक जो हमारा ग्राउंड लेवल स्टाफ है उससे भी लेते रहे कि जो डायरेक्शंस उनको लगातार दिए जा रहे हैं इस अभियान को सफल बनाने के लिए, उसमें वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स के लिए हम लोगों ने उनके 20 से 350 हेड फार्मर्स को क्रिएट किया था, सो दैट कि लगातार वो बाकी फार्मर्स को भी मोटिवेट रखें और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो उन सभी 350 फार्मर्स की हमने रेगुलर ट्रेनिंग्स की है, इसमें ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी आयोजित की गई। वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का भी इसमें मॉड्यूल रखा था, जिसमें 2 NGOs को हमने इसमें अपने साथ शामिल किया था, और जितने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी भी लगातार हमने अवेयरनेस को लेकर, होम विजिट को लेकर, एनीमिया, न्यूट्रिशन, लैक्टेशन, हाइजीन को लेकर सभी चीजों पे बहुत गुणवत्तापूर्वक ट्रेनिंग कराने का प्रयास किया, जिसका हमें इसमें परिणाम मिला। इसके अतिरिक्त हैंडआउट्स, शगुन कार्ड, संवर्धन पोस्टर आदि के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हम लोगों ने प्रचार प्रसार और IC एक्टिविटीज को किया है, ताकि हर घर में और हर माता को और उसकी पूरी फैमिली को इस अभियान के बारे में जानकारी रहे और वो इसको जो डायरेक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करते रहे। जन भागीदारी इस अभियान का मेन कंपोनेंट रहा है। प्रारंभ में ही पंचायती राज संस्थाओं को, ग्राम पंचायतों को इसमें हमने केवल बजट पार्ट में ना शामिल करके उनको पूरा लीड रोल दिया और प्रधानों को मोटिवेट किया कि वो अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं, बजट का प्रबंधन भी करें, और साथ साथ इन सारी फैमिलीज को, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में 4 से 5 फैमिलीज एवरेज थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको बहुत बताया गया कि इन परिवारों को आप गोद लें और गोद लेके लगातार ध्यान रखें कि कहीं पे जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उसको वो नेग्लेक्ट ना करें, कहीं पे उनको ऐसा ना हो कि वो फॉलो ना कर रहे हो। तो उस पर अच्छा काम इन सभी ग्राम प्रधानों ने किया है। स्कूल्स में भी हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं। पोषण वाटिकाओं को हम लोगों ने स्कूल्स में स्थापित कराया। 715 पोषण वाटिकाएं इस दौरान कराएंगी, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स को हम लोगों ने इसमें स्कूलों में उगाया और मिड डे मील के माध्यम से हम लोग प्रयास करते थे कि जो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर के ना हो, उनमें भी लगातार न्यूट्रिशन को लेकर एक बहस हो, एक न्यूट्रिशन एक केवल सब्जेक्ट न बल्कि एक आंदोलन का रूप ले और सब लोग उस पर चर्चा करें, ताकि फिर उसमें अपने फ्यूचर में वो इस चीज को अपने ध्यान में रखें। नेक्स्ट, इसमें पोषण पंचायतों का भी सर हम लोगों ने अलग अलग ग्राम पंचायतों में लगातार इसका आयोजन करवाया है। मूल रूप से होता है कि पंचायतों में जब भी बैठकें होती हैं तो वो एक कॉमन एजेंडा बनता है और उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे वो डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसमें चूंकि एक विशेष अभियान था तो हमने ये डायरेक्शन जिला प्रशासन ने हमको दिया
कि आप केवल पोषण के बिंदु पर इसमें सभी पंचायतों में चर्चा करिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनों की उसमें भागीदारी हो, और उसका एजेंडा नोट भी हमने डिस्ट्रिक्ट से बना के दिया ताकि उनको क्लियर रहे कि किन विषयों पे उन्हें बात करनी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे उसमें सिमिलैरिटी रहे, कहीं पे कोई अलगाव उसमें अंतर ना आ जाए, तो उसका भी हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है। क्योंकि हमारे सर जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मोटा अनाज जो मिलेट बेस है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी हाल ही में भारत को ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनाने के लिए जो यूएन में आह्वान किया गया था और यूएन द्वारा इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है, तो उसका भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको, उस थीम को अपने इस अभियान के साथ में हम लोग जोड़ें। हमने जनपद में हमारे डिस्ट्रिक्ट में श्री अन्न मिलेट शॉप भी जो फोटोग्राफ में आप देख भी सकते हैं उसको स्थापित कराया विकास भवन में। और जितने हमारे ये परिवार तो हैं, पर इसके साथ साथ किसानों और जो हमारे एफपीओ हैं, इनकी इनकम को और हम कैसे बढ़ाएं, और ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको न केवल ये सैम कैटेगरी के बच्चे या कुपोषित परिवारों के लिए, बल्कि आम परिवारों के लिए भी सारे प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हैं, जैसा कि हमारे इंटरनेशनल मिलेट ईयर की थीम भी है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को हमने मार्केट में भी अभी सेल करने के लिए मिलेट शॉप की है, और ऑनलाइन इसका भी हम लोगों ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी इन सारे प्रोडक्ट्स को भी रजिस्टर कराया है। तो इसके माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट को अपना सस्टेनेबल बना सकते हैं और फ्यूचर में भी इसको और एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने इसमें काम किया है। हमारा जो एफपीओ है वो इसमें मिलेटप्रेन्योर के रूप में कैसे बन पाए उस पर भी हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रोसेसिंग यूनिट है सर, उसमें हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जितनी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम लोगों ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उसमें तो सोलर पावर प्लांट भी लगाया, उसके माध्यम से वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। और इसको स्टेट लेवल पे भी हम लोगों ने लगातार प्रमोट किया है। हमारे रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर द्वारा भी इसको हमारे एफपीओ को बेस्ट एफपीओ का अवार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और G20 समिट के दौरान भी जिन 4 एफपीओ का वहाँ पे मिलेट प्रोडक्ट्स के लिए चयन किया गया था, उसमें इस एफपीओ को भी चयनित किया गया था। इन 2 वर्षों का परिणाम भी निकला कि जितने इस एफपीओ के माध्यम से किसान हैं, 2020 में 50 लाख रुपए से उन्होंने टर्नओवर की शुरुआत की थी और 2 साल में ही 2.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर अभी हमारे एफपीओ का हो गया है। सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग देखें सर, 3 साल के लिए हम लोगों ने इसमें एमओयू साइन किया है, तो तब तक हमारा लगातार ये प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल बना रहे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पंचायती राज संस्थाओं को जो कि इसमें जिम्मेदारी दी गई है और लगातार उन्हें सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की धनराशि प्राप्त होती है, तो इसलिए इसमें फ्यूचर में भी इस प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है। और लगातार बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी और बाकी स्टेट्स के लोग भी हमसे इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, और एक्सपोजर विजिट के लिए भी बहुत सारे लोग अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो सो दैट कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग और स्केलेबल बना सकें। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर द्वारा भी इसका प्रेजेंटेशन जब हमसे लिया गया था, इसको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को रेप्लिकेट करने का डायरेक्शन दिया गया था, तो लगभग अभी 10 जिलों में उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट का रेप्लिकेशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगातार ये प्रयास है हमारा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारा जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसको बाकी लोगों को बताएं, और अगर उन्हें ये ठीक लगता है तो उसको वो अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे के लिए सर हम लोगों ने इसमें वे फॉरवर्ड में जितने हमारे अन्य एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जो इस पूरे कुपोषण के चक्र को खत्म करने में सहयोगी हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने इसमें टारगेट में लिया है, उसको हम लोग इस पे अभी लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट में भी जो नई मशीन्स को हम लोगों को लगाना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें अभी जो 20 लाख रुपए का इनिशिएटिव इंसेंटिव हमें अभी DRPG से मिला है सर, उसको भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। और रिटेल मार्केटिंग में भी हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट, ये सर कुछ फोटोग्राफ है जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने इन सारे स्टॉल्स का को देखा था। ये ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर है मिस्टर BL वर्मा, उन्होंने देखा था। थर्ड जो स्लाइड है उसमें बिफोर एंड आफ्टर का हम लोगों ने हेल्थ इंडिकेटर का डेटा दिया है, जिसमें 3 महीने में जिन बच्चों के वेट में और हाइट में जो सुधार आया है, ये कुछ मीडिया कवरेज है। तो ओवरऑल सर इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने जो हमारे
लोकल स्थानीय जन हैं, जो हमारे किसान हैं, एफपीओ है और ग्राम पंचायतें हैं, तो ये सभी लोकल लेवल के हमारे लीडर्स हैं, जिनको हमने क्रिएट किया है और ये प्रयास किया है कि इनके माध्यम से ही हम लोग जितने चैलेंजेस सोसाइटी के सामने हैं और जो हमारा न्यूट्रिशन के सेक्टर में है उसको हम लोग ओवरकम कर पाए और इनको चैंपियन बना के और इनकी लीडरशिप में ये जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान कर पाए और इसको सस्टेनेबल बना पाए, तो उस पर लगातार हमारा प्रयास है। थैंक यू सर। Thank you, Ravindra Kumar ji. It was a very exciting presentation. Kindly stay in the web room. We'll take up the Q&A session at the end of the, after the second presentation. Now we will play the film for the second presentation on New Age Learning Center. Kindly play the film, please. अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला न्यू एज लर्निंग सेंटर द्वारा बच्चों का जीत रहा है दिल। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि किस्से, कहानियों और नए हुनर के ताने बाने भी बुने जाते हैं। बेसिकली जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है और लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ रीडिंग ट्रांजैक्शन से हट के नॉलेज का पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग इसमें कराते हैं। किताब पढ़ना उसका एक एस्पेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्लब बेस्ड एक्टिविटीज होते हैं जिसमें अलग अलग हॉबी Now please play the film. अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला न्यू एज लर्निंग सेंटर द्वारा बच्चों का जीत रहा है दिल। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, बल्कि किस्से, कहानियों और नए हुनर के ताने बाने भी बुने जाते हैं। बेसिकली जो न्यू एज लर्निंग सेंटर है और लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ रीडिंग ट्रांजैक्शन से हट के नॉलेज का पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग इसमें कराते हैं। किताब पढ़ना उसका एक एस्पेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्लब बेस्ड एक्टिविटीज होते हैं जिसमें अलग अलग हॉबीज बच्चों के होनअप किए जाते हैं। कंफर्टेबल स्पेस देते हैं। सारे रिसोर्सेज उसको एडिशनल हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको ड्रीम करने में, जिससे अपने हॉबीज को कल्टीवेट करने में कोई तकलीफ ना हो। एक फन बेस्ड लर्निंग हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हम यूज कर रहे हैं, किंडल्स यूज करते हैं बच्चे, टैबलेट्स पे पढ़ाई करते हैं, करियर काउंसलिंग हम लोग बच्चों का कराते हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको टच करते हैं। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स इसमें इंटीग्रेट किए गए जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग भी चाहता है कि एनएलसी में जो बच्चा लोग है वो लोग यहाँ Okay, let me invite Shri Sunny Singh ji to kindly make his presentation, please. Sunny Singh ji. Sunny Singh ji, can you please make your presentation? Please stop sharing. Sir, very good afternoon, sir. Very good afternoon Yes. to all Yes, participants. I would Yes. I would Please request to make your share my presentation. Yes. sir. So starting with the initiative New Age Learning Center, जैसा आप सभी ने देखा इसके बारे में,
तो सबसे पहले मैं ये किस सेटअप में इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है ये एक अरुणाचल प्रदेश का एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। वी शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, अबाउट 100 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा म्यांमार से हम शेयर करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसर्जेंसी और ड्रग्स का इन्फ्लक्स और उसका प्रिवेलेंस काफ़ी ज़्यादा है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसके चलते इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे ड्रग्स का और इंसर्जेंसी का प्रिवेलेंस है, उसमें जो स्टेट ऑफ एजुकेशन हम लोगों ने देखा कि काफ़ी पुअर था। सिर्फ 36% बच्चे ही 10वीं क्लास में पास कर पाते थे, बाकी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे। इसके साथ साथ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एक वन ऑफ द 10 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वेरी लो लेवल ऑफ फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। तो इससे क्या कि एक नॉलेज का जो पूरा कल्चर था वो मिसिंग था। 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के इवन बच्चे जो थे वो कोई ड्रग इंजेक्ट करते हुए देखे जाते थे। टीचर्स भी कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व थे। खास करके जब हम लोग स्कूल्स जाते थे और बच्चों से जब इंटरेक्ट करते थे तो उसमें बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी डाउन था। खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करते हैं तो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनका नाम पूछने से भी वो कॉन्फिडेंटली अपने नाम को नहीं बता पाते थे। इसके साथ साथ जब उनसे हम बात करते हैं और उनके एस्पिरेशंस के बारे में पूछते हैं तो उनके एस्पिरेशंस तो हैं कुछ करने के, वो कई उसमें से डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट उनका एक कंसर्न है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो कहते हैं कि कच्चे घर में हम लोग बैठ के कैसे बड़ा दिल्ली में, बॉम्बे में बैठा हुआ लोगों से compete कैसे हम लोग कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा डेफिसिट था और बच्चों का जो लो कॉन्फिडेंस और उनके एस्पिरेशन को मैच करने के लिए इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी थी। जैसा मैंने पहले बताया कि जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं वो उनका एक प्रोबेबिलिटी होता है कि इंसर्जेंसी के नेक्सस में भी फंस सकते हैं, ड्रग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो उसमें जो की स्टेक होल्डर बच्चा, पेरेंट और टीचर होता है, तो उसमें जो पेरेंट की प्रायोरिटीज थी वो काफी मिसप्लेस्ड थी। उनको एजुकेशन को लेके सीरियसनेस, एजुकेशन का वैल्यू की अवेयरनेस उनको अच्छे से नहीं थी, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे जो सक्सेसफुली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन पा रहे हैं। तो ये इस चीज को लेके पेरेंट्स में भी जो जागरूकता थी, जो अवेयरनेस थी, वो बहुत कम थी। बच्चे अगर अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो पेरेंट को बहुत ज्यादा उस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। खास करके मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जहां में पेरेंट्स ऑलरेडी इलिटरेट और इतने अवेयर नहीं होते। और खास करके जो हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरीज तो बहुत सारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, सब डिविजनल लाइब्रेरीज हैं, सर्कल लाइब्रेरीज हैं, बट वो लाइब्रेरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक डिफंक्ट और डिलैपिडेटेड स्टेट में पड़ा हुआ था। और उसके साथ साथ जो उसमें बुक्स हैं, जो उसके फर्नीचर्स हैं, वो इस हालत में थे कि फुटफॉल जो होता था वो ईयरली 100, ईयरली 200 का फुटफॉल टाइप होता था। क्योंकि जो हम लोगों ने बातचीत करते हुए, बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए देखा कि नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके एस्पिरेशन को जो कन्वेंशनल लाइब्रेरीज हैं वो पूरी तरीके से मीटअप नहीं कर पाती हैं। नया जनरेशन का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है, वो प्रेफर करता है किंडल हो, टैबलेट हो जिसमें मैं पढूं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो वो जो पुराना जो सिस्टम, एक ट्रेडिशनल सिस्टम था लाइब्रेरीज में कि एक रीडिंग ट्रांजैक्शन होगा लाइब्रेरी में, वो वाली चीज नए जनरेशन के एस्पिरेशंस को मैचअप नहीं कर पा रही थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट प्लीज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारा जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो कहीं ना कहीं डिफंक्ट पड़े हुए हैं, अनयूज्ड पड़े हुए हैं, उनको हम लोग एक ऐसा स्पेस में ट्रांसफॉर्म करें जहां में सिर्फ रीडिंग ट्रांजैक्शन ना हो, जहां में पूरा लर्निंग और नॉलेज क्रिएशन से लेके नॉलेज ट्रांसमिशन सब कुछ एक ही रूफ के अंदर हम बच्चे को प्रोवाइड कर पाए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोगों ने जो बच्चे थे, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो बात किया कि चिल्ड्रन सेंट्रिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो जो बच्चों के लिए स्कूल बनता है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनता है, बच्चों के लिए लैब्स बनते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों से हम उस चीज को नहीं पूछते कि आपको
किस तरीके की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पसंद है, आपका स्कूल क्लासरूम किस तरीके का होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली बच्चे उसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हम लोगों ने क्या किया इस केस में कि बहुत सारे डिजाइन्स हम लोगों ने बैठ के एक टीम बना के शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करके फिर हम लोगों ने बच्चों के साथ एंगेज किया, उनको दिखाए, उनसे पूछा कि आप किस तरीके से बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। आप अगर आपको हम बोलते हैं कि आप लाइब्रेरी बनाओ, तो ये अगर 10-12 जो आपको टेम्पलेट दिखाए गए हैं, इसमें से कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, आप कौन सी चीज के साथ लाइब्रेरी बनाना चाहोगे। तो ऐसे करके बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से, सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एनरोल करके उनसे इनपुट लेके हम लोगों ने फिर डिजाइन को फाइनलाइज किया, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस दिया हम लोगों ने कि बच्चा जो होता है कई बार उसको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद होता है। जैसे लाइब्रेरी में आके पता है कि बुक लेके एकदम साइलेंट रहना है, आपको टेबल और चेयर पे ही बैठ के पढ़ना है, बट इस केस में बच्चों को हम पूरा फ्रीडम देते हैं कि अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, टोटल 3 सेक्शंस हैं इसमें। एक सेक्शन है जिसमें हम लोग जो सीरियस पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड केबिन्स हम लोगों ने बना के रखा है। एक सेक्शन है जिसमें हम लोग जो यूजुअली यूथ्स या जो बड़े एज ग्रुप के लोग आके पढ़ाई करना चाहते हैं, जो नॉर्मल लाइब्रेरीज होती हैं, वैसा एक सेक्शन है। और एक सेक्शन जो हमारा है वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए, वो फन लर्निंग को हम उसमें प्रमोट करते हैं, और यूजुअली वो छोटे उम्र के बच्चों के लिए होता है। तो हम लोगों ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देके इसमें ई लर्निंग के लिए हम लोगों ने किंडल, टैबलेट्स, ई बुक्स, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि बच्चे एक बार पढ़ाई करने जब लाइब्रेरी में आते हैं तो 1 घंटा उन लोगों ने बुक पढ़ लिया, फिर उसके बाद से जब वो बोर होते हैं तो उसके लिए उनको हम कुछ और एक्टिविटीज में एंगेज क्या हम कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि मोटिवेशनल मूवीज, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, ये सब करने से बच्चे सीखते भी हैं, समझते भी हैं और आना भी चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि विजुअल लर्निंग बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ जो जैसा मैंने बताया कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको क्रिएटिविटी का एक स्पेस दिया, जिसमें अलग अलग रिसोर्स पर्सन आके अलग अलग हॉबीज बच्चों में होनअप करने की कोशिश करते हैं, कल्टीवेट भी करते हैं, जिनका ऑलरेडी होता है उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटल, ऐसे राइटिंग, जैसे म्यूजिक क्लब्स, इको क्लब्स, ऐसे बहुत सारे क्लब बेस्ड एक्टिविटीज भी हम लोग इसमें कराते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बच्चों का पूरा पर्सनालिटी को टच करना है, पूरे पर्सनालिटी को रिवाइव करना है, तो उसके लिए हम लोग सीपीआर देना, कैसे सीपीआर दे सकते हैं हम बच्चे कैसे सीपीआर दे सकते हैं इमरजेंसी केसेस में, लाइफ सेविंग मेडिसिन क्या क्या होते हैं, किसी को एलर्जी हो जाता है, किसी को स्नेक बाइट हो जाता है, तो क्या क्या करना होता है ऐसे केसेस में, फायर इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना होता है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या डूज और डोंट्स होते हैं। और साथ साथ जो जैसा मैंने बताया कि नॉलेज का एक कल्चर मिसिंग था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठते ही नहीं थे, तो उसके लिए हम लोगों ने करियर काउंसलिंग भी इसी स्पेस में हम लोगों ने कराना शुरू किया, अलग अलग रिसोर्स पर्सन को एनरोल करके, एनरोल करके। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि जो लर्निंग होगी वो उसमें हम लोगों ने फन के एलिमेंट, रिक्रिएशन के एलिमेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे रिपब्लिक डे परेड होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन करके बच्चे देखते हैं, उसके बाद से उसको रिपब्लिक डे परेड के बारे में बताते हैं कि इस झांकी का ये सिग्निफिकेंस था। इसके साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल का काफी क्रेज होता है, तो सारे बच्चे मतलब उनके घर में टीवी नहीं होता है, कई बच्चे हैं जिनके घर में टीवी है बट यहाँ पे पावर सप्लाई में कई बार ब्रेक आते रहता है, तो ऐसे केसेस में फुटबॉल के जो फीफा मैचेस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्क्रीन करते हैं। इसके साथ साथ इसमें हमारा एक स्मार्ट टीवी होता है, उसमें हम लोगों ने बाइजू के साथ एमओयू करके एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिसमें कई बच्चे हैं जिनको कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फिजिक्स का, या मान लीजिए किसी को मैथ्स में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके इलस्ट्रेटिव वीडियोस हैं बाइजू ने जो बना के दिया हुआ है, उसके थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ताकि उनको आसानी से इसमें समझ में आ जाए, फील आ जाए। और इसको
मतलब एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसके मेंबरशिप को फ्री रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है वो हम आगे सस्टेनेबिलिटी वाले स्लाइड में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे रेलिवेंट बुक्स जो होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल करके रखा हुआ है। ई रिसोर्सेज, जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ हम लोग बच्चों को इनेबल करने देते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों का 10वीं का या 12वीं का जब एग्जाम आता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके पहले हम लोग नाइट टाइम में भी लाइब्रेरी को ओपन करके रखते हैं। वहां पे सिक्योरिटी का पूरा सुविधा रखते हैं। ऑलरेडी वहां पे वाईफाई लगाया हुआ है, तो बच्चे रात के टाइम भी बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनके घर में अलग से स्टडी रूम नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग इनको पूरी रात भी इसमें बैठ के पढ़ने के लिए स्पेस दे देते हैं। नेक्स्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं, दीज आर ग्लिम्स ऑफ फ्यू एक्टिविटीज विच आर अंडरगोइंग। पहला स्केचिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, ये केंद्रीय विद्यालय पास में ही है, वहीं के एक टीचर है। इसके साथ साथ जो सेकंड फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं कि बच्चा पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है। थर्ड स्लाइड में हम लोग फीफा स्क्रीन कर रहे हैं। फोर्थ स्लाइड में एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। फिफ्थ में बच्चा योगा सीख रहा है, योगा कर रहा है। सिक्स्थ में ये लोग एक डिस्कशन डिबेट कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसे करके मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, हम लोग कुछ एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज हम लोगों ने जो इसमें किया कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लेते रहते हैं, बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी। तो फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक मतलब मियाओं से बाहर ही नहीं गए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही नहीं गए, दिल्ली बॉम्बे जाना तो दूर की बात है। तो उनका भी एस्पिरेशन है, वो भी सोचते हैं कि हम लोग ताजमहल देखना चाहते हैं, हम कुतुब मीनार देखना चाहते हैं, तो या हम लोग कोई टेम्पल देखना चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वर्चुअल टूर कराने शुरू किए बच्चों को। तो जैसे आज इस टाइम पे हर जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं सबके वर्चुअल टूर्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल है 360 डिग्री व्यू के साथ। तो वो मतलब अलाइक रियलिटी अलाइक आपको फीलिंग दे देता है। तो वैसे करके हम लोग VR सेट के थ्रू हम लोग बच्चों को इस तरीके के एक्सपोजर दिए, जिससे बच्चे और ज्यादा इंटरेस्टेड होके इस सेंटर पे आते हैं। नेक्स्ट। जब हम आउटकम की बात करते हैं, तो जैसा मैंने पहले का सिचुएशन और सिनेरियो बताया था कि 10th में बहुत बच्चे फेल होते थे, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था और लाइब्रेरीज के फुटफॉल बहुत कम थे। तो इस टाइम पे क्योंकि मॉडल इस तरीके का है, इतना अट्रैक्टिव डिजाइन है कि बच्चों को ये अट्रैक्ट करता है, तो इस टाइम पे 3000 रेगुलर इसमें चिल्ड्रेन है, जो 3000 जो एनरोल्ड हैं, जो कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी कई आते हैं, वीकली बेसिस पे तो 100% आते हैं। और टोटल 15,000 लोगों ने मेंबरशिप लेके रखा हुआ है, जो लोग कभी ना कभी इस लाइब्रेरी को अभी तक विजिट कर चुके हैं, इस लर्निंग सेंटर को, और किसी ना किसी तरीके से इसके फैसिलिटीज को अवेल करते हैं। इसमें हम लोगों ने जो आसपास के 5-10 स्कूल्स होते हैं उसका एक क्लस्टर बना के, उस स्कूल से कुछ कुछ ग्रुप्स बना के इनके साथ अटैच कर देते हैं इस लर्निंग सेंटर के साथ। तो ये जो क्लब बेस्ड एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, उसमें इन सारे बच्चों को हर स्कूल से जैसे 50-50 बच्चे शॉर्टलिस्ट करके ये यहाँ पे वो आके चीजों को सीखते हैं। तो एक तरीके से जो 10 स्कूल का सेपरेट हम लोग लाइब्रेरीज बनाते, उसके जगह पे हम लोग इस लर्निंग सेंटर को एक कन्वर्ज करके 10 स्कूल के लाइब्रेरी की तरह, क्लस्टर लाइब्रेरी की तरह भी यूज करते हैं, क्लस्टर लर्निंग सेंटर की तरह भी यूज करते हैं। जैसा कि फ्लेक्सिबल डिजाइन रखा है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्पेस है, तो इसमें एक पुल फैक्टर है जो बच्चों को पुल करता है। और इस टाइम पे आप कभी भी किसी भी टाइम हम जाने से वहां पे पूरी भीड़ लगी होती है, कभी भी वहां पे स्पेस खाली नहीं रहता। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम लोगों ने इस लर्निंग सेंटर में इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, जो 10वीं के बच्चे हैं, जो पीछे 30% ही बच्चे पास हुआ करते थे, ऐसे 1-2 हमारे सर्कल हैं जहां पे आज तक कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ था, जैसा एक विजयनगर सर्कल है। तो इनके लिए हम लोगों ने स्पेशल फोकस करके एक प्रोजेक्ट सफल हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसका फलक्रम ये न्यू एज लर्निंग सेंटर होता है। तो इसमें हम लोग बच्चों को सुबह से शाम तक यहीं पे रखते हैं, बीच में खाना पीना वो खाने चले जाते हैं। बाकी टाइम 15 इयर्स के उनको पेपर देके रखे हुए हैं, उनको टेस्ट सीरीज देके रखे हुए हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं जो उनको मदद करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं चीजों को, अगर उनको समझ में नहीं आता है
तो ये करके और उनको रात रात तक का एक्सेस देते हैं इसमें। तो ऐसा करने से ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 100% बच्चे, जहां तक आज तक एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा था, विजयनगर का इस बार का 100% रिजल्ट हुआ गवर्नमेंट स्कूल का। तो इससे ये समझ में आता है कि जो बच्चे कल तक, मतलब उनको ऐसा हुआ था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उन बच्चों को ठीक से पढ़ना, पैराग्राफ फॉर्म करना भी नहीं आता था। तो इसमें उन लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया और विजुअल एड की मदद से, वीडियोस की मदद से और पीछे 15 साल के जो पेपर थे उसको बार बार उनको रिपीट करा के, उनको बार बार रिवाइज करा के 100% बच्चे इस बार पास हो गए। तो ऐसे करके जो पासिंग परसेंटेज है वो काफी इंप्रूव हुई। बच्चे जो फेल होके, ड्रॉप आउट होके किसी और तरफ बढ़ जाते थे, वो अभी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो क्लब बेस्ड एक्टिविटीज हम लोगों ने बताया, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो गया है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि हमारे रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर विजिट किए थे, बाकी कई सेक्रेटरी सर भी आए, तो बच्चे उनसे प्रॉपर बातचीत कर पाते हैं, अपने आप को अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ उनसे कई क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब भी देते हैं। कल तक वही बच्चे जो अपना नाम कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते थे, आज के डेट में वो बच्चे किसी भी आदमी के सामने खड़ा होकर बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, उनका कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना है तो वो बड़े इजिली कर पाते हैं। और नॉलेज एंड लर्निंग का एक कल्चर, जो पहले ड्रग का एक प्रेवलेंस था, उस कल्चर को हम लोगों ने नॉलेज और लर्निंग के कल्चर से रिप्लेस कर दिया है। इसमें जैसा मैंने बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में 2-3 चीजें जो मैं मिस कर गया बताना, उसमें हम लोग माइंड पजल्स बच्चों को, जैसे अगर कोई बच्चा इंडिया का मैप के बारे में सीखना चाहता है, वर्ल्ड के मैप के बारे में सीखना चाहता है, तो वो पजल के फॉर्म में हम उनको देते हैं, तो वो खुद उस पजल को सॉल्व करते हैं, जिससे उनको समझ में आ जाता है कि क्या स्टेट का क्या पोजीशन है, साउथ में क्या स्टेट है, उनके कैपिटल्स क्या हैं। तो ऐसे करके कई बार हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स भी बच्चों के साथ आते हैं, वो भी उनको पजल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो कल तक जो पेरेंट्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था बच्चों का पढ़ाई में, वो पेरेंट्स आज इस लर्निंग सेंटर पे आके अपने बच्चों को सिखाने में मदद कर रहे हैं। तो एक जो कल्चर, जो लर्निंग का पूरा मिसिंग था, वो कल्चर आज इस टाइम पे हम लोग जब अपने मियाओ सब डिवीजन में जाते हैं तो वो देखने को मिलता है। साथ में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों ने इस टाइम पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे 3 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट के, अभी तक कभी ऐसा नहीं हो रहा था, जो लोग मेंस क्वालिफाई करके एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं। आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ। और ड्रॉप आउट्स, ऑब्वियसली ड्रॉप आउट्स काफी कम हो गए। जो ड्रॉप आउट होके नेगेटिव चीजों की तरफ जा सकते थे, वो लोग इस टाइम पे 11वीं और 12वीं में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें सस्टेनेबिलिटी को हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा ध्यान देके रखा था, क्योंकि यूजुअली हम इनिशिएटिव्स तो स्टार्ट करते हैं, बट ऑफिसर, जब तक ऑफिसर रहता है जो इनिशिएटिव को स्टार्ट करता है, तब तक वो ठीक से चलता है। जैसे ट्रांसफर होता है, वो सारा इनिशिएटिव कहीं ना कहीं डेरेल हो जाता है। तो उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया। इसमें कोई गवर्नमेंट के तरफ से फंड नहीं था। जब हम लोगों ने लाइब्रेरी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो इसमें पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई। कम्युनिटी के साथ सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुए, जिसमें उनको परसुएड किया गया। तो इसमें कई लोग, जिनके जैसे पंचायत डिपार्टमेंट ने इसके पूरे सीलिंग में जितने भी CGI शीट लगे, वो पंचायत डिपार्टमेंट ने डोनेट किया। बहुत सारे ब्रिक किन्स के जो ऑनर थे, उन लोगों ने ब्रिक्स डोनेट किया। हमारे बहुत सारे क्रशर यूनिट थे जिन्होंने ब्रोकन चिप्स डोनेट किया। तो ऐसे करके कुछ 100 मिल इंडस्ट्रीज थी जिनने लकड़ियां डोनेट करी। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारा इसमें डोनेशन आया, जिससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट और लोगों का ओनरशिप इस चीज को लेके आया। और जैसा मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, बट उसको रन करने के लिए हमने एक NGO को एनरोल किया अपने साथ। तो उस NGO में, जो मैंने बताया कि क्लब बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जो हॉबीज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, वो और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स जो होते हैं, वो सारे NGO के रिसोर्स पर्सन आके बच्चों को सिखाते हैं। पहले वो, जैसे बच्चों का एक क्लब हो गया, मान लीजिए फोटोग्राफी क्लब है, उसमें हम 15 या 20 बच्चों का एक ग्रुप होगा
ऐसे करके 4-5 ग्रुप्स होंगे। तो उस ग्रुप को सबसे पहले उसमें से 2-3 बच्चे जिनको बहुत ज्यादा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उनको हम ट्रेन कर देते हैं, एंड देन उसके बाद से पीयर टू पीयर लर्निंग वो बच्चे खुद और बच्चों को सिखाते हैं। तो ऐसे हर डोमेन में, जितने भी डोमेन है, हम उसमें बच्चों के अमॉन्गस्ट ही एक मास्टर ट्रेनर बनाते हैं और फिर पीयर टू पीयर लर्निंग को प्रमोट करते हैं। वो बच्चे खुद आपस में उस चीजों को सीखते और सिखाते हैं। तो एनजीओ का जो इसमें रोल है कि वो रिसोर्स पर्सन लेके आते हैं ताकि बच्चों को इनिशिएट कर सकें। करियर काउंसलिंग के लिए रिसोर्स पर्सन लेके आते हैं। फोटोग्राफी के कभी कभी 15 दिन के हम लोग मॉड्यूल्स कराते हैं, जैसे वेकेशन में यूजुअली हम करते हैं। गिटार के सेशंस होते हैं, म्यूजिक क्लब्स भी हैं इसमें। इसके साथ साथ जो एनजीओ को इंसेंटिव कुछ ना कुछ हमें देना होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें सीएसआर इनिशिएटिव के थ्रू, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑयल इंडिया का ऑपरेशन है, तो ऑयल इंडिया के थ्रू जितने भी हमारे लर्निंग सेंटर है, इस टाइम पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 हैं, उन सबको लाइफ टाइम के लिए एक एमओयू हम लोगों ने साइन कर दिया कि मेंटेनेंस और एनजीओ को जो भी, जैसे एनजीओ जो काम करवाते हैं उसके लिए चार्ट पेपर की जरूरत होती है और बहुत सारे ऐसे रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो आते हैं वो सीएसआर के थ्रू ऑयल इंडिया से हम लोग मीटअप करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया था कि क्राउड फंडिंग से जो कम्युनिटी का इसमें ओनरशिप आया, तो उससे हम लोग कम्युनिटी का फीडबैक लेते रहते हैं। जितने भी मेंबर हैं उनका फीडबैक लेते रहते हैं और उसके फीडबैक के हिसाब से इसमें इंक्रीमेंटल एडिशन करते रहते हैं। और सब डिविजन लेवल पे जहां भी ये लाइब्रेरी सिचुएटेड होती हैं, जो लर्निंग सेंटर सिचुएटेड होता है, वहां का जो एडमिन ऑफिसर होता है उसके नेतृत्व में हम लोग एक कमिटी बनाते हैं, जो कमिटी का काम होता है कि इसको आगे कैसे और लेके जाना है और इसके सस्टेनेबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर करना है। नेक्स्ट, रेप्लिकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑलरेडी इसका एक एसओपी भी हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो स्टार्ट हम लोगों ने मियाओ सब डिवीजन से किया था, जो वीडियो में आपको दिख रहा था वो मियाओ सब डिवीजन का न्यू एज लर्निंग सेंटर है। उसके बाद से हम लोगों ने चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी था उसको भी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया और इस टाइम पे टोटल 3 सब डिवीजन और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस तरीके का लर्निंग सेंटर चल रहा है। अभी इस टाइम पे टोटल 15 से 20,000 लोग इस चीज का हिस्सा बने हुए हैं, इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, जिसमें ऑल एज ग्रुप के लोग हैं, सिर्फ बच्चे नहीं है। कई ड्रॉप आउट लोग हैं जो 20-20 साल के थे, जो ड्रॉप आउट थे, वो लोग भी आके अभी इस टाइम पे पढ़ाई करते हैं। वो लोग भी ओपन स्कूलिंग से हम उनको एग्जाम दिलवा के दोबारा से 10वीं का एग्जाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बाहर के भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ के जो डीसी सर हैं उन्होंने इसको रेप्लिकेट किया है। तो रेप्लिकेशन बहुत सिंपल है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमारे पास होता है, जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें माइनर चेंजेस कराने हैं। कुछ डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स को दिखा के बच्चों का भी थोड़ा आइडिया लेके और स्टेक होल्डर्स का आइडिया लेके उसमें इंक्रीमेंटल कुछ चेंजेस कर देने हैं, डिजाइन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। कम्युनिटी को मीटिंग करके उनको इन्वॉल्व करना है, उनको परसुएड करना है ताकि वो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो। एक एनजीओ को आइडेंटिफाई करना है जो पहले से ही एक्टिव है और उसमें और कुछ ऐसे लोग जो सही में कुछ करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव वो करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। कुछ ऑफिसर्स ही होते हैं हमारे पास जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारा आईटी के जो डीएलआईयू हैं उनको हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया, वो कुछ चीजें करा देते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जाके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में बताते हैं। कोई अगर नर्स है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो जाके वहां बच्चों को सीपीआर सिखा देते। तो ऐसे करके जहां एक्टिव एनजीओ नहीं होती है वहां पे हम अपने रिसोर्सेज को उसमें इन्वॉल्व करके और एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप उस एनजीओ का काम करता है। और साथ में मेंटेनेंस के लिए इसमें या तो हम सीएसआर के थ्रू कर सकते हैं, इसके अलावा अगर जहां पे सीएसआर हम नहीं वो कर सकते, मोबिलाइज कर सकते हैं, वहां पे ग्रेडेड मेंबरशिप रख सकते हैं। जैसे हमने एक जगह जहां सीएसआर नहीं मोबिलाइज हुआ वहां पे ग्रेडेड मेंबरशिप रखा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग ग्रेडेड मेंबरशिप फी रहती है। तो ऐसे करके इसकी रेप्लिकेबिलिटी काफी आसान है। मैं कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। पूरा डिटेल जो रेप्लिकेशन एसओपी है उसमें है। कॉस्टिंग में एक जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, उसको ट्रांसफॉर्म करने में टोटल 10 से 15 लाख का खर्चा आता है।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो कई बार हम जो एक लाइब्रेरी था हमारा उसको हम लोगों ने सिर्फ 6 लाख में ट्रांसफॉर्म किया, जहां पे बहुत ही डिलापिडेटेड कंडीशन है वहां 16-17 लाख तक भी लगे। तो बहुत ज्यादा कुछ खर्चा भी इसमें नहीं आता है अगर हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिसोर्स को मोबिलाइज कर लिया, पंचायत से और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसको कन्वर्ज करके मोबिलाइज करके हम ये चीज को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये दूसरा जो मैंने बताया था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी था उसको भी हम लोगों ने लर्निंग सेंटर में ट्रांसफॉर्म किया। इसका रेप्लिकेशन कॉस्ट आप देख सकते हैं 10 लाख है। इसमें बहुत ही खराब हालत में था ये, इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, फ्लोर चेंज किया, सीलिंग चेंज किया और जो आप रैक्स देख सकते हैं मॉड्यूलर रैक्स रख दिए और बहुत सारी चीजें पुरानी चीजों को इसमें यूज किया गया ये चीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट, और कुछ ऑलरेडी जो अभी एग्जिस्टिंग वर्क हैं, जो ऑनगोइंग वर्क हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। ये एक जगह हम लोगों ने जो बनाया इसमें 4 लाख में हमने पूरे इस लाइब्रेरी को ट्रांसफॉर्म किया न्यू एज लर्निंग सेंटर में। नेक्स्ट, इस इनिशिएटिव की रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हुए स्टेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी बजट में भी अनाउंस हुआ कि टोटल 11 सब डिवीजन में अरुण ज्ञान केंद्र बनाने जा रहे हैं जो इसके कई सारे एलिमेंट्स को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी स्टेट लेवल पे भी इस चीज को इनिशिएट किया जा चुका है और जैसा मैंने बताया कि स्टेट के बाहर भी कई 1-2 डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। नेक्स्ट, और इसमें बच्चों को एंगेज करने के लिए बच्चों को किस तरीके से हम रीच आउट करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे और भी सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम इसकी पब्लिसिटी करते हैं ताकि बच्चे इस न्यू आइडिया को समझ पाए, इस नए आइडिया को जान पाए और अट्रैक्ट होके फिर मेंबरशिप लें और आके यहाँ पे पढ़ाई कर सके। तो सोशल मीडिया का, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उनको हम लोग यहाँ तक लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्कूल में भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, जो रिसोर्स पर्सन है जाके वहाँ पे बताते हैं कि इस लर्निंग सेंटर पे हम ये सर्विसेज आपको देते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें टर्न अप। नेक्स्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। Thank you. I think both presentations were quite outstanding. Let me congratulate both speakers. There are several award-winning collectors in the web room. Would any of them like to speak? We have Anakapalli, Baramulla, Chamoli, and Banka. These were PM award-winning districts in other categories. Would any of you like to speak? Collector Anakapalli, Collector Baramulla, Collector Chamoli, or Banka. We also have some of the districts that have replicated this initiative. Sambhal is in the web room. Is Kanpur, Dehat, Moradabad, Bulandshahr, Firozabad, Bareilly, who have replicated the Sanvardhan initiative. Would they like to speak? Okay. Then we have West Siang, Tawang, West Jaintia of Northeast who are in the web room. You're trying to replicate this project, I'm told. Kishtwar is in the web room also. Okay. So I have 2 questions. One for the first speaker. Please tell me, Ravindra Kumar ji, how have you linked the FPOs? How many FPOs are functional in the district, and what is the number of farmers in the FPOs, and how was the agriculture department's response to this particular growing of these crops, the millet crops that you have tried to emphasize in the Samvardhan model, and how much, and what is the remuneration the FPOs are getting? सर रामपुर कृषि जो एफपीओ के सर मिस्टर अमित वर्मा मेरे साथ है सर। इफ यू परमिट सर तो वो अपना एक्सपीरियंस सर एक बार आपको शेयर करेंगे तो आई थिंक वो और अच्छे से क्लियर करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, अमित वर्मा फ्रॉम रामपुर कृषक एफपीओ। सर हमारे रामपुर में अभी टोटल 16 एफपीओ वर्किंग है
और 16 में से 4 जो पोटेंशियल और प्रोग्रेसिव एफपीओ थे उन लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है ब्लॉक वाइज। एफपीओ में मिनिमम 350 फार्मर्स होना जरूरी है, उसमें से करीब 25% फार्मर टर्नआउट हुए हैं कि वो क्लस्टर फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन पर जाएंगे। तो इस तरह से रामपुर में 4 एफपीओ में करीब के आसपास 1000 किसान हम लोगों ने रामपुर के साथ जुड़े हैं। थैंक यू। और एक एफपीओ में कितने किसान हैं? एक एफपीओ में कितने किसान रहते हैं? सर एक एफपीओ में 350 किसान रहते हैं मिनिमम। 350 किसान रहते हैं। और कितने एफपीओ हैं जिले में? थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि बहुत ज्यादा 15 एफपीओ जी। और सेकंड सर, जो आपने सर दूसरा जो क्वेश्चन था किसानों को सर मोटिवेट करने का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल सर, वो बहुत क्रिटिकल था सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग किसान पाठशालाएं चलाते हैं सर। जब भी जो हमारा न्यू सीजन शुरू होता है रबी खरीफ जायद का सर, तो उससे पहले जैसे रामपुर में सर हमारा जो रबी खरीफ सीजन है तो उसमें अभी पैडी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है सर, और रबी में हमारे यहाँ पे वीट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है सर। और 95% सर जितने हमारे किसान थे सर वो उसी में इसको करते हैं। तो किसान पाठशालाओं के माध्यम से सर हमें लगातार उन्हें मोटिवेट करते थे। लेकिन सर जो प्रॉब्लम जो आती है, जैसे सर मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि इनका मार्केट लिंकेज ना होना, क्योंकि जब सर 2 साल पहले जब मैं शुरू में डिस्ट्रिक्ट में आया था तो हम जब रिव्यू करते थे तो किसानों ने जैसे किसी ने केसर की खेती किया या किसी ने सर और इस तरीके की नई कोई क्रॉप अगर किया, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल उनको मोटिवेट तो करता था कि प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मार्केट लिंकेज का सर एक गैप था हमेशा से। तो एफपीओ के माध्यम से सर हमने मार्केट लिंकेज के गैप को खत्म किया है, क्योंकि एफपीओ के पास हमारा इतनी कैपेसिटी है कि वो दिल्ली में या जो ऐसे बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं तो वहां पे पहले से सर उसमें वो जो भी जीन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में रेट तय कर लेते हैं। और जो कि इस वाले प्रोजेक्ट में सर हमें किसी और पे भी डिपेंडेंसी नहीं थी हमारी। लोकल लेवल पे हमारी प्रोसेसिंग यूनिट यही रामपुर में ही थी, और हमारा जो रिसोर्सेज थे, जो हमारा बजटरी प्रोविजन था वो ग्राम पंचायत से ही आना था। तो इसलिए हमारे पास ये श्योरिटी थी कि बजट का कोई इश्यू नहीं आएगा। इसलिए किसानों को जब हमने पहले 350 फार्मर्स ने इसमें शुरू में पार्टिसिपेट किया तो उनको सर लीड फार्मर के रूप में बाकी किसानों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। और जब किसानों के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से किसानों के पास सारी बात पहुंची, तो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि अगर इनके कहने से हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो बाद में मार्केट नहीं मिलता, तो वो सर ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। और वो ट्रस्ट एक बड़ा गवर्नमेंट सिस्टम पे भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सर। थैंक यू। Sunny Singh ji, I have one question for you. This project is being replicated in Kishtwar district? Yes, sir. Is that what? And what is the modalities of replication in Jammu Kashmir of a project of Northeast? Sir, गाइडलाइंस बुकलेट कुछ बनाया है इसका? कैसे रेप्लिकेट कर पा रहे हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स? सर इसका एक एसओपी बनाया है सर रेप्लिकेशन का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं रेप्लिकेशन में, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो देयर इज ए रेप्लिकेशन मॉड्यूल सर, जिसमें एक एसओपी है, जिसमें फाइनेंसेस भी किस तरीके से इनकर होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम ठीक करा सकते हैं। उसमें कुछ डिजाइन टेम्पलेट्स भी हैं सर। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद DRPG सर। We will circulate it to all collectors also, so that if there is, if the others are interested in replication of both these projects, रविंद्र कुमार जी, अगर आपका भी replication का कोई guidelines booklet बना है, तो वो भी हमारे साथ share करें ताकि it can be shared with all other districts. So I'll invite Joint Secretary Rajput ji for the vote of thanks. Thank you, sir. I thank our Secretary DRPG, Sri V. Srinivas ji, for chairing this session, sir. I thank Ravindra ji, DM Rampur, and Sunny Singh ji, DM Changlang, for presenting their best initiative, which were awarded this year by the Honorable PM, sir. I thank all the districts who have joined, all the CO, Jila Parishad, CDOs who have joined this session virtually.
I thank the team of DRPG, the team of NCGG for facilitating this webinar, sir. Thank you. So we will conclude this webinar here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.